Hello students, my name is Jatin and today we are going to start with a very new chapter called circles. It is chapter number 10th of class 10th. So let's begin. So before starting this chapter, you need to know about two very important terms. So the first term is secant. Secant. Now what is secant? Secant is a line which intersect the circle on two distinct points. Now let me show you with the help of a diagram. So suppose this is a circle and a straight line passes through this circle. Suppose this line. So this line is called secant because it is intersecting the circle at two distinct points. See here, this is point A and this is point B. अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो कोई भी एक लाइन जो सर्कल के अंदर से पास हो रही है वो पास होनी चाहिए. ये नहीं कि आप कोई लाइन यहाँ से एक्सटेंड करो और यहीं रोक दो, नहीं, आपको वो लाइन को पास करवाना है. अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल से पास हो रही है पूरी तरह और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में काट रही है तो उसको सीकेंट कहते हैं. ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट दिस. A very easy term, right? So let's move on to next term. So the next term is tangent to a circle. Now what is tangent? Tangent is a line which intersect the circle at only one point. Which intersect मतलब काटना या टच करना द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली. लेट मी शो यू. सो दिस लाइन इज अ टेंजेंट. वाई? बिकॉज ये सर्कल को सिर्फ छू के निकल रही है, ना सर्कल के अंदर से जा रही है ना सर्कल के बाहर से जा रही है. देखो, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ए. दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दिस सर्कल, राइट? सो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल. अगेन अ वेरी इजी टर्म, राइट? सो लेट्स डू सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स नाउ बेस्ड ऑन दिस. अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अगर ये सर्कल है, suppose this is a circle and if I draw the diameter, can you tell me whether it is a secant or a tangent? Can you tell me whether it is a secant or a tangent? It is a secant. Why? Because this diameter will touch the circle at two distinct point. ये यहाँ से पास नहीं कर रहा, माना नहीं पास कर रहा, लेकिन पॉइंट तो टच कर रहा है. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इट इज टचिंग ऑन द सर्कल, राइट? A and B and it is the center. Let's suppose it is a center, right? So it passes through the center, diameter passes through the center and touches the 2 point on a circle, right? So diameter is also a secant. Okay, now let's move on to some important theorems. Theorems of this chapter. Based on these theorem you will do the questions, right? So the first theorem is a tangent. देखो, आपको एक एक वर्ड अपने हाथों से लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको कोई नोट्स मिल जाएंगे. अपने नोट्स खुद बनाओ. तो ये लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे तुम भी लिखो. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज perpendicular to the radius through the point of contact. This is the very first theorem of this chapter. Suppose this is a circle, right? And let's say this is, एक second, this is a tangent to this circle because it is touching the circle at only one point, right? This is the center
let's say this point is O, right? So let me draw the radius. Everyone know the radius, a line passing from the center to the boundary of the circle, till the boundary of the circle, right? So this is a radius, this dotted line is a radius. Now I have to prove that this dotted line is the shortest possible line to the tangent, AB, and this line is perpendicular to this tangent, right? This radius is perpendicular to this tangent. Okay, you must have studied in your class 9th that a shortest possible distance between any two point is the perpendicular distance. एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये जोमेटो से खाना सबने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, ये आपका होम है, ठीक है, सपोज दिस इज़ योर होम, और जोमेटो डिलीवरी वाला कहीं यहाँ पे है, ठीक है, आप लेफ्ट में देखो तो ये जोमेटो डिलीवरी बॉय है, ठीक है। अब इसका जो रूट दिखा रहा है आपके फ़ोन में वो ऐसे दिखा रहा है, ऐसे ऐसे घूम के इसको आपके घर में आना है। लेकिन आप घर पे बैठे बैठे क्या सोचोगे कि यार तो इतना घूमने से अच्छा है, इमेजिनेशन करोगे आप ऐसा कि तू डायरेक्ट आ जा ऐसे, काश कोई एक ऐसी लाइन होती या कोई ऐसा रूट होता जो ये रेड वाली लाइन पे, वो रेड वाली रोड पे वो आ जाता, ठीक है। तो आपने ये रूट क्यों बनाया, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, ये रेड वाली लाइन, क्योंकि ये आपके घर के ना, अगर मान लो ये घर की लाइन है, ये घर के परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दी अनदर लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। ओके, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन का मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, ये लाइन जो है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, और ये लाइन परपेंडिकुलर है आपके घर पे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी बंदा यहाँ से यहाँ आना है उसको, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है, वरना वो तो ऐसे घूम के आएगा, जिग जैसे भी आना है उसको, ठीक है, ये टाइम लंबा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो डायरेक्ट आ जाए, यार काश कोई ऐसी रोड होती कि वो बंदा डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। और वो डायरेक्ट वाली रूट कौन सा है, वो परपेंडिकुलर वाला रूट है, ठीक है, क्योंकि वही सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल है। तो अब यहाँ देखो, अब जब ये रेडियस है, ठीक है, ओ पी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी, ठीक है, अभी इसको हटा दो परपेंडिकुलर को, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी। अब ये ओ पी इज द, वी हैव टू प्रूव दैट ओ पी इज द शॉर्टेस्ट possible line to the tangent, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, अभी भी मैंने बताया जोमेटो वाले से, ठीक है। अब ये आपको प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे कि आप ज्वाइन करोगे एक पॉइंट टेंजेंट पे ऐसे स्ट्रेट लाइन, और इस पॉइंट को नाम दोगे आप डी, और तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट ऑल्सो, थ्रू कंस्ट्रक्शन join OD through R, मतलब ये R जहाँ पे ये बाउंड्री को टच करेगा सर्कल की, ठीक है। तो ये आपने OD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, या तो सेंटर टू अ पॉइंट ऑन एनी टेंजेंट, ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। वी नो, अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं आप। ये दिस कुड कम इन योर एग्जाम राइट दिस टाइम, सो लेट मी रब दिस वाला पार्ट लेफ्ट। Now we know that OP is equal to OR because both are radius, ठीक है, OP is equal to OR, right? And एक OD देखो, OD is equal to OR plus RD, can I write OD as OR plus RD? Yes, we can write OD as OR plus RD। देखो ना OD को, ये रहा OD इतना बड़ा, वो किन दो लाइन को मिला के बना हुआ है, OR plus RD, ठीक है। Now if we compare this OP and OD, if you compare OP and OD, then you can see that OD is equal to OR plus RD, ठीक है, ये अभी मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है। it means that OD is greater than OR, OD is greater than OR, क्योंकि OD कब बन रहा है, जब हम OR में कुछ प्लस कर रहे हैं, OR में जब मैं कुछ प्लस कर रहा हूँ यानी RD प्लस कर रहा हूँ, तब जाके वो OD के इक्वल आ रहा है। तो मतलब OR छोटा होगा ना OD से, ठीक है, OR is less smaller than OD, right? It also mean that OD is greater than OP also, because OR and OP were equal, both are radius, right? It also means that OD is greater than OP also. So we have proved that OP
is the shortest distance possible from the center to the tangent, possible from, I think this is visible to, this will be visible to you, from the, मैं लिख रहा हूँ from the center to the tangent, राइट. अब कोई और एक लाइन बना लो सेंटर से टेंजेंट पे, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, OP ही सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है. एंड OP इज़ अ रेडियस ऑल्सो, OP is a radius also, so it means that if OP is the shortest possible distance, it means that OP is perpendicular to AB. अभी मैंने समझाया जोमेटो वाला एग्जांपल देके, ठीक है, क्योंकि यही एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा. सो आप ऐसे लिखोगे, सो इट मीन्स that OP is perpendicular to tangent AB, right? So this was the first very important theorem of this chapter, that OP is the shortest possible distance and OP is the radius. So I can say that radii is perpendicular to the tangent at the point of contact, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ही होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा टेंजेंट के ऊपर. तो जहाँ भी वो टेंजेंट को टच करेगा वो पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि वही सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है. इसके समरी मतलब कंक्लूजन ये है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम. Theorem 2, right? The length of two tangents from an external point to a circle are equal. Now this term, there are some term in this theorem, that tangent you know now, ठीक है, external point I will tell you, ठीक है, to the circle are equal. Okay, we need to prove this, right? Now you know what tangent is. एक second. Suppose this is a circle. Let's say this is a circle and this is the external point P. Suppose this is an external point P outside the circle, right? तभी वो external है. Let me draw two tangent from this point to the circle. इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, इस P को थोड़ा पास कर लेते हैं. अब यहाँ से दो टेंजेंट हम सर्कल पे निकालेंगे. कैसे निकालेंगे देखो, this is the first tangent and this is the second tangent, right? सपोज करो कि ये टच कर रहा है, ये टेंजेंट है और ये ज्वाइन कर रहा है A और B. Suppose, so we have started the solution. So suppose PA and PB are two tangents to the circle. Now join from the center O to these tangents. Join a line. So OA is a line and OB is a line. So OA and OB are radius also. OA and OB are radius also, right? Now join OP. ठीक है, join OP also, right? And you know one thing, from the theorem 1, that OA will be perpendicular to AP and similarly OB will be perpendicular to PB, because OA and OB are the shortest possible distance from the center to the tangent. I am repeating it again. OA and OB are the shortest possible distance from the center O to the tangents, right? To their respective tangents, right? Okay, so and we know that shortest possible distance is at the angle of 90 degree only. Okay, just I have told you, right? So OA will be perpendicular to PA and OB will be perpendicular to OP. Now you need to prove congruency in OPA and
O P B, right? Now what we need to prove? To prove, let me write it first. To prove that PA is equal to PB, this is what we need to prove, right? Two tangents are equal from a single external point. So let me कहाँ प्रूव करें इसको? ठीक है, इसको रब कर देते हैं, आपने लिख लिया होगा. Now in triangle APO and triangle BPO, OA is equal to OB, both are radius, right? OP is equal to OP, common side, right? And angle OPA is equal to angle OBP, both are of 90 degrees. So right angle, hypotenuse means OP, and side means OA. So by RHS, right angle hypotenuse side, can we say that triangle APO is congruent to triangle BPO, right? So can we say that? Yes, we can say that, right? Congruency you must have studied in your class 9th, right? I hope that you know what congruency means. Congruency means same shape and same size as well, right? So OPA is of same size and shape to the triangle OPB, right? So by CPCT, can I say that AP is equal to PB? AP will be equal to PB. This is what we needed to prove, and we have proved it, right? So by CPCT, AP will be equal to PB. So from now onwards, I'll directly say that two tangents from a single external point to the circles are equal from theorem 2. ठीक है, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कहूँगा कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं जब दो टेंजेंट निकालूंगा, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पे निकालूंगा, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि दीज टेंजेंट्स आर इक्वल. आई हैव प्रूव्ड इट ऑल्सो बाय द कॉन्ग्रुएंसी, राइट? सो दिस वॉज द थ्योरम 2, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. दिस कुड कम इन योर एग्जाम, बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस हैं. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस थ्योरम 2 वी हैव टू प्रूव two things more, that if tangents from an external point to the circle are equal, वही सेम लाइन थ्योरम 2 की, then they subtend equal angles at the center, and also they are equally inclined to the segment joining the center to that point. अब ये सब क्या है बताने दो मुझे. Let me tell you what this mean. So suppose this is a circle, right? Again the similar diagram. This is a point, okay, this is point P, and these are two tangents to the this circle, right? This is tangent 1 and this is tangent 2. अब ये कह रहा है थ्योरम में, suppose this is center and let me join that also, OA OP OB, ठीक है, और let me join OP also. Okay, this is 90 degree, this is 90 degree, these two angles are equal. I have already proved that this triangle is similar congruent to this triangle, right? So what we need to prove now this time, first part, they subtend equal angles at the center, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, and second वाला part, they are equally inclined to the segment joining the center to that point, to the segment OP joining the center, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल यार, ठीक है. So what we need to prove that एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOP है ना, BOP, एक तो फर्स्ट पार्ट में ये, और एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO. सो हाउ विल यू प्रूव दिस? by congruency you need you will prove that this triangle is congruent to this triangle, and we have already proved that this triangle is, if this triangle is congruent to this triangle, then by CPCT can we prove that this angle will be equal to this angle, matlab angle 1 will be equal to angle 2 and angle 3 will be equal to angle 4, right? By CPCT this will get proved, right? So by the similar congruency you will prove this also. So this angle, अगर वो एक ट्रायंगल सेम शेप और सेम साइज के हैं तो उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है. सो एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल BPO एंड एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल BOP बाय
same method of congruency you will prove this. Okay, this is the extension of theorem 2, right? So these three theorems you need to keep in mind before doing questions of this chapter. Okay, now let's move on to some questions so that the picture will get more clear to you. Question number 1 says a tangent, या छोटा छोटा लिखता हूँ इस बार ताकि सॉल्यूशन के लिए जगह बचे, यहाँ से लिखता हूँ a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q so that OQ is 13 सेंटीमीटर, फाइंड PQ. अब देखो इसमें कीवर्ड्स ढूंढो. पहले तो एक टेंजेंट है PQ, ठीक है, एक टेंजेंट हमें गिवन है PQ, रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है. टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है बाउंड्री पे P, मीट्स अ लाइन मतलब एक लाइन, टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P, हाँ ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q, मतलब सेंटर O है और एक पॉइंट Q है बाहर कहीं. देखो मैं बनाता हूँ डायग्राम, एक सर्कल तो लेना ही पड़ेगा, एक सेकेंड यार. दिस इज द सर्कल, राइट, एंड वी आर गिवन द सेंटर इज O विद रेडियस, एक रेडियस बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की, ठीक है. अब PQ एक टेंजेंट है, बोला है ना पहली लाइन में PQ इज अ टेंजेंट, सो P कहीं यहाँ पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ में ये भी बोला है कि एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर P है कहीं, ठीक है. और PQ अगर एक टेंजेंट है तो एक लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे, ठीक है. टेंजेंट मीन्स विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली. देखो ये पॉइंट P है, ठीक है, एंड PQ इज अ टेंजेंट, तो PQ यहाँ बना दे, ठीक है. टेंजेंट क्या होता है सर्कल का, अभी भी बताया, ठीक है. टेंजेंट मतलब जो सर्कल को सिर्फ छू के निकल जाए एक ही पॉइंट पे, ठीक है. तो ये P पॉइंट पे छू रहा है टेंजेंट सर्कल को, ठीक है. नाउ लेट्स जॉइन OQ. इफ यू जॉइन OQ, so this is the diagram based on the question. If you join OQ, we are given that meets a line through the center से पढ़ो O at a point Q, ठीक है, such that yes so that OQ is 13 centimeter. So we are given 13 centimeter, and from the theorem 1 you know that OP will be perpendicular to PQ. yes, या ऐसा लिखोगे आप सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करोगे दैट OP विल बी परपेंडिकुलर टू PQ. नो नीड टू टेल व्हाई, बिकॉज OP इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट. ये पूरी लाइन लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट में साइड में ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, ठीक है. सो OP विल बी परपेंडिकुलर टू PB, राइट. सो इन ट्राइंगल OPQ, कैन यू अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल OPQ, बिकॉज वी नीड टू फाइंड PQ. देखो PQ ही निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लो. इन ट्राइंगल PQ OPQ बाय पाइथागोरस एवरीवन नो, यस. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस था, ठीक है. सो लगाओ हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, OQ इज द हाइपोटेन्यूज, सो OQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP इज द परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी PQ का स्क्वायर, राइट. सो OQ यू आर गिवन 13 सेंटीमीटर, OP इज गिवन 5 सेंटीमीटर प्लस PQ का होल स्क्वायर, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू नीड टू रिमेंबर द स्क्वायर स्टिल 30, राइट, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए. तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169. नो नीड टू डू, अपना टाइम वेस्ट मत करना करने पे. 13 इंटू 13 1 मिनट लगाओगे करने पे, 1 मिनट लगाओगे चेक करने पे. उससे बढ़िया है कि आप याद कर लो 30 तक के स्क्वायर्स, राइट. सो 25 का 5 का स्क्वायर 25 एवरीवन नोस, राइट. सो PQ स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 169 माइनस 25. व्हाट इज दिस, यार यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा देते हैं. PQ स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 144, राइट. एंड यू नो 144 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 12. 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12. सो PQ की लेंथ आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2. Question 2 will be like this. A point P is
13 centimeter from the center of the circle, right? The length of tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radii. Find the radii. Okay, और सर्कल इज गिवन. एक पॉइंट P बाहर बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. अब पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. पहली लाइन पढ़ो, ये वाली, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट्स सपोज सेंटर इज O और एक लाइन जो ड्रॉइन करते हैं हम यहाँ से, ठीक है. अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम P टू O विच इज़ ऑफ 13 सेंटीमीटर. सो ये आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर की, ठीक है. और क्या बोला बस, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल. एक टेंजेंट है P से ऐसे जाएगी, ठीक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो कितने गिवन है, 12 सेंटीमीटर की, ठीक है. सो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज R, ठीक है. आपको निकालना है PO. यू नीड टू फाइंड OR. OR इज द रेडियस, ठीक है. एंड यू नो वन थिंग दैट OR will be perpendicular to PR, right? No need to tell you the reason again and again. OR will be perpendicular to PR, right? Shortest possible distance, again the similar. So you if this triangle is a right angle triangle, can you apply Pythagoras, right? By Pythagoras, right? Pythagoras, what you can say that OP is the hypotenuse, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है. सो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, राइट. सो OP का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OR मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस PR. एंड बाय द टाइम यू वुड हैव नोन दैट 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144, एंड दिस विल बी इक्वल टू PR का स्क्वायर, एंड PR विल बी 5 सेंटीमीटर. सो PR की लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 10.2 करूँगा, ठीक है. 10.1 नाउ यू फ्रॉम द NCERT यू कैन डू ऑन योर ओन, राइट. सो लास्ट क्वेश्चन, ओके, ऑफ दिस वीडियो, concept video. Find the length of tangent. Find the length of tangent drawn from a point whose distance from center of a circle is 25 सेंटीमीटर. आई होप यू आर राइटिंग द क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन भी लिखो आप, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे होंगे. मेरे कैसे हुए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा है. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. ओके, अगेन अ सर्कल इज गिवन, राइट. सो दिस इज द सर्कल. फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. नाउ यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, राइट. सो from this point tangent is drawn. Suppose this tangent is P, okay, whose distance from the center, again from the center, let's suppose center is O, is 25 centimeter, right. And given that we are also given that the radii O, ये R ले लेते हैं, is 7 centimeter again. And you know one thing, OR is perpendicular to PR. No need to tell you the reason again and again, right. So this is 90 degree. Again you need to apply the Pythagoras. So by Pythagoras, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो OP हाइपोटेन्यूस होगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ठीक है. OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है. OP का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, एवरीवन नोस 25 का स्क्वायर इज 625. इफ़ यू डोंट, प्लीज़ रिमेंबर, ओके. OR का स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर क्योंकि OR इज द रेडियस, राइट. सो 49 प्लस PR का स्क्वायर. सो PR का स्क्वायर विल बी 625 माइनस 49. कितना हुआ ये बताओ. मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है. 5 में से 9 गया तो 6, ठीक है. 61 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 57, 576, ठीक है. सो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एंड इसका स्क्वायर रूट 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, क्योंकि आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं. मैं लिख दूँ क्या, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा. देखो 1 से 10 के स्क्वायर तो सबको याद है, ठीक है. मैं लिखता हूँ 11 से. सो 11 का स्क्वायर इज़ 121, 12 का स्क्वायर इज़ 144. प्लीज़ रिमेंबर दिस एज इट इज़. आपको टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पे,
ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 225 मैं खुद भूल गया, 289, 18 का स्क्वायर इज़ 324, 19 का स्क्वायर इज़ 361 एंड 20 का स्क्वायर इज़ 400। एक सेकेंड इसका याद करते हैं, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 याद आ गया अब, ठीक है। सो 21 का स्क्वायर इज़ 441, अगर मेरे सामने दिख जाएगा तो मैं तो वैसे ही पता लग जाएगा, थोड़ा याद आप कर लो। 22 का स्क्वायर इज़ 484, 23 का स्क्वायर इज़ 529, 24 का स्क्वायर इज़ 576, 25 का स्क्वायर इज़ 625, 26 का स्क्वायर इज़ 676, 27 का स्क्वायर इज़ 729, 28 का स्क्वायर इज़ 784, 29 का स्क्वायर इज़ 841 एंड 30 का स्क्वायर इज़ 900। देखो यहाँ तक के स्क्वायर्स अगर आपके टिप्स में है ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ये पूरा आप यार लर्न कर लो। एक काम करो, एक पेज में लिखो और एक कहीं पे चिपका लो, ठीक है। बार बार आप पाइथागोरस यूज़ करते हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, स्क्वायर्स करना हो तो डायरेक्ट लिखो, 30 तक के स्क्वायर्स ही आते हैं मोस्टली, ठीक है। और स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। आप करने नहीं बैठोगे, एलसीएम लोगे फिर दो के कॉम्बिनेशन निकालोगे, ऐसे करने में टाइम वेस्ट होता है आपका। तो यहाँ आप 5 से 6 मिनट आपको आपके बच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वॉज the very first video of the circles. So in the next video we will do exercise 10.2, then I'll bring some more exam type questions of this chapter. Okay, so thank you so much.